بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 کی مزید تفسیر کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جھوٹ کیا ہے۔ دوستو، انسان کی ساری بری عادات میں سب سے بری عادت جھوٹ کی ہے۔ یہ جھوٹ خاص زبان سے بولا جائے یا عمل سے ظاہر کیا جائے، کیونکہ ہمارے تمام اعمال کی بنیاد اس پر ہے کہ وہ واقعہ کے مطابق ہوں، اور جھوٹ ٹھیک اس کے ضد ہے۔ اس لیے یہ برائی ہر قسم کی قولی اور عملی برائیوں کی جڑ ہے۔ انسان کے دل کے اندر کی بات سوا اللہ کے کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ اگر کوئی دوسرا شخص جان سکتا تو اس کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ شخص خود اپنی زبان یا عمل سے اس کو ظاہر کرے۔ اب اگر وہ اپنے اندرونی صحیح اور واقعہ کے مطابق بات جان بوجھ کر نہیں ظاہر کرتا بلکہ اس کے خلاف ظاہر کر رہا ہے تو وہ ساری دنیا کو فریب دے رہا ہے۔ ایسے شخص میں دنیا کی جو برائیاں بھی نہ ہوں وہ کم ہیں، کیونکہ اس نے تو اسی آئینہ کو ہی توڑ ڈالا ہے جس میں حقیقت کا چہرہ نظر آتا ہے۔ اسی لیے نبی کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ صادق ہو، یعنی بعض پیغمبروں کے لیے یہ صفت کے طور پر بولا گیا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کر وہ بے شک بڑا سچا نبی تھا۔ اسی لیے جو جھوٹا ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ پھر اس کے دعویٰ ایمان یا نبوت پر کسی نے بھروسہ نہیں کرنا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے نبوت کا دعویٰ پیش کیا اور اس نے اس کے ماننے سے انکار کر دیا، تو اس کے ایک درباری نے جو دل میں مسلمان تھا، فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدق نبوت پر ان کی عام سچائی سے دلیل پیش کی اور کہا کہ جھوٹا اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک سورہ مومن میں فرماتا ہے، اگر یہ جھوٹا ہوگا تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا، اور اگر سچا ہوگا تو تم پر پڑے گا۔ کوئی وعدہ جو تم کو دیتا ہے بے شک اللہ اس کو راہ نہیں دکھاتا جو بے باک جھوٹا ہو۔ اس میں یہ تلخ حقیقت بھی چھپی ہوئی ہے کہ مدعی نبوت کے برخلاف فرعون اپنے ہر کام کو کرنے میں بے باک اور جھوٹا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹے انبیاء علیہ السلام کی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں اور کفار کے طور طریق پر چلتے ہیں۔ روم کے قیصر نے بھی اپنے دربار میں ابو سفیان سے جو باتیں پوچھی تھیں، ان میں ایک یہ بھی تھی کہ مکہ کا مدعی نبوت اپنے دعویٰ نبوت سے پہلے کیا جھوٹ بھی بولا کرتا تھا؟ ابو سفیان نے جواب دیا، نہیں۔ روم کے قیصر نے جواب دیا، جو بندوں پر جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پر جھوٹ کیسے باندھ سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، وہ سچا نبی ہے۔ قرآن پاک میں نبی کی صداقت کی دلیل میں ایک اور آیت آئی ہے۔ سورۃ شورى میں اللہ پاک فرماتا ہے، شیطان اترتے ہیں ہر جھوٹے گنہگار پر، لا ڈالتے ہیں سنی بات اور بہت ان میں جھوٹے ہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ جھوٹ انبیاء علیہ السلام کی سنت اور روش کے سراسر خلاف ہے۔ اسی لیے جو جھوٹا ہوتا ہے اس کے دل سے اللہ کی روشنی یعنی ہدایت بجھ جاتی ہے۔ اللہ پاک سورہ زمر میں فرماتا ہے، بے شک اللہ اس کو راہ نہیں دکھاتا جو جھوٹا ہے، احسان نہیں مانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، گناہ دوزخ میں، اور جھوٹ بولتے بولتے آدمی اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں لے جانے والا کام کیا ہے؟ فرمایا، سچ بولنا۔ جب بندہ سچ بولتا ہے تو نیکی کا کام کرتا ہے، اور جو نیکی کا کام کرتا ہے
वो ईमान से भरपूर होता है। जो ईमान से भरपूर हो वो जन्नत में दाखिल हुआ। उसने फिर पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, दोज़ख में ले जाने वाला काम क्या है? फरमाया, झूठ बोलना। जब बंदा झूठ बोलेगा तो गुनाह के काम करेगा, और जब गुनाह के काम करेगा तो कुफ्र करेगा, और जो कुफ्र करेगा दोज़ख में जाएगा। इस हदीस से मालूम हुआ कि झूठ की बुराई कितनी वुसअत रखती है कि कुफ्र भी इसमें आ जाता है। झूठ से ज़्यादा बुरी चीज़ कोई दूसरी नहीं, और झूठ के लिए निजात का हर दरवाज़ा बंद है। अल्लाह ताला की रहमत का दायरा बहुत वसी है। वो दुनिया के ज़र्रे ज़र्रे को घेरे हुए है। इसकी रहमत की छाँव में सारी कायनात आराम कर रही है, मगर रहमत इलाही से बदनसीब जो शख्स है वो झूठा है। झूठा शख्स रहमत इलाही से महरूम होने की वजह से हर वक्त बेसुकून रहता है। इस्लाम की लुगत का सख्त तरीन लफ्ज़ लानत है। लानत के मानी अल्लाह की रहमत से दूरी और महरूमी के हैं। कुरान पाक में इसका मुस्तहक शैतान बनाया गया है, और इसके बाद यहूदियों, काफरों और मुनाफिकों को इसकी खबर सुनाई गई है। लेकिन किसी मोमिन को झूठे के सिवा इसके किसी फेल की बिना पर लानत से याद नहीं किया गया। झूठ बोलने और झूठा इल्ज़ाम लगाने की सूरत में अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है कि जो झूठा हो इस पर अल्लाह की लानत की जाए। मुबाहला के मौके पर यह फरमाया गया कि दोनों फरीक अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगें कि जो हम में झूठा हो इस पर अल्लाह की लानत हो। सूरत आले इमरान में अल्लाह पाक फरमाता है, फिर दुआ करें, फिर झूठों पर अल्लाह की लानत भेजें। शौहर जब बीवी पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाए और शौहर के पास इसका कोई गवाह ना हो तो इसको 4 दफ़ा अपनी सच्चाई की कसम खाने के बाद 5वीं दफ़ा ये कहना पड़ेगा। सूरत नूर में अल्लाह पाक फरमाता है, इस पर अल्लाह की लानत हो अगर वो झूठों में से हो। इससे मालूम हुआ कि झूठ ऐसी बुरी चीज़ है कि जो इसका मुर्तकिब होता है वो काफरों और मुनाफिकों की तरह की बद्दुआ का मुस्तहक होता है। झूठ की एक किस्म ये भी है कि जानकर कोई अनजान बन जाए, हक का इल्म रख कर भी उसका इजहार ना करे। अल्लाह ताला ने ऐसे झूठों पर भी लानत फरमाई है। सूरह बकरा में अल्लाह पाक फरमाता है, बेशक जो छुपाते हैं जो उतारे हमने साफ हुक्म और राह के निशान, इसके बाद के हमने किताब में इनको इंसानों के लिए खोल कर कह दिया है। इन पर अल्लाह लानत भेजता है और लानत करने वाले लानत करते हैं। ये झूठ की ऐसी किस्म है जिसमें झूठा शख्स हक को छुपाता है और झूठ बोलता है। ये झूठ कौलन नहीं होता लेकिन अमलन होता है और नफाक की परवरिश करता है। नफाक इसको कहते हैं कि दिल में कुछ हो और ज़बान पर कुछ, इसलिए जो मुनाफिक होगा वो झूठ भी ज़रूर बोलेगा। चुनाचे अल्लाह पाक सूरह मुनाफिकीन में फरमाता है, और अल्लाह गवाही देता है कि मुनाफिक झूठे हैं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ को मुनाफिक की निशानी समझो। फरमाया, मुनाफिक की पहचान 3 किस्म की हैं, जब कहे झूठ बोले, जब वादा करे पूरा ना करे, और जब अमीन बनाया जाए तो ख़यानत करे। लफ्ज़ों में ये बातें 3 हैं, लेकिन हकीकत में ये एक ही शक्ल की 3 मुख्तलिफ तस्वीरें हैं। झूठ बात करना तो झूठ है, मगर वादा करके पूरा ना करना भी झूठ है, और इसी तरह अमीन बनकर ख़यानत करना भी अमली झूठ है, क्योंकि जो अमीन बनता है वो अपनी निस्बत ये यकीन दिलाता है वो इसमें ख़यानत ना करेगा, और जब इसने इसके ख़िलाफ़ काम किया तो वो अमलन झूठ बोला। झूठ अकेली बुराई नहीं बल्कि इसकी वजह से झूठे में 20 किस्म की दूसरी बुराइयां भी लाजमी तौर से पैदा हो जाती हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने झूठे को ना सिर्फ
झूठा कहा है, बल्कि इसके साथ दूसरी किस्म की सिफात भी शामिल करती हैं। अल्लाह पाक फरमाता है, सूरत शोरा, झूठ बोलने वाला गुनहगार। सूरत ज़मर, झूठ बोलने वाला, एहसान का हक ना मानने वाला। सूरत मोमिन, बेबाक, झूठा। इन आयात से मालूम हुआ झूठा गुनाहों में लथपथ होता है, क्योंकि झूठ की आदत के सबब से वो किसी बुराई के करने से शर्माता नहीं, क्योंकि वो समझता है कि मौका पर झूठ बोलकर मैं इसको छुपा लूँगा। इसलिए वो हर बुराई के करने पर आमादा हो जाता है। जो झूठा होगा वो अपने किसी मोहसिन का एहसान भी नहीं मानेगा, क्योंकि जो खुद झूठा है वो दूसरे को भी इसके अमल और नियत में झूठा ही समझेगा। और अगर वो ज़बान से कहे भी कि मैं मानता हूँ, तो किसी को इसकी बात पर यकीन नहीं आएगा। इसी तरह जो झूठ बोलता है, इसको किसी बुरे से बुरे काम के करने में डर नहीं होता। वो हर गुनाह पर दिलेर और हद से बढ़ जाने वाला होता है। झूठ की आम किस्म तो यही है कि ज़बान से वो कहा जाए जो दिल में नहीं, या जो उसके अंदरूनी इल्म व यकीन के ख़िलाफ़ हो। लेकिन ये झूठ कौली है, और जो ज़बान से झूठ है कस्बे अमल, यानी झूठ का वो काम जो अमल से ज़ाहिर हो, वो अमल का झूठ है। जो कहा जाए वो ना किया जाए। सूरत तौबा में अल्लाह पाक फरमाता है, इसलिए कि अल्लाह से जो वादा किया था इसके ख़िलाफ़ किया, और इसलिए कि झूठ बोलते थे, इसके झूठ के सबब से इनके दिलों में नफाक ने जगह पकड़ी। कसम खाकर और अहद करके किसी काम को ताकत के बावजूद ना करना एक किस्म का फ़रेब तो है ही, मगर झूठ भी है, और ऐसा झूठ जो बहुत ख़तरनाक है। सूरह तौबा में अल्लाह पाक फरमाता है, और वो कसम खाएंगे कि हमको ताकत होती तो हम तुम्हारे साथ लड़ाई में चलते। वो अपने आप को हलाकत में डालते हैं, और अल्लाह को मालूम है कि वो झूठे हैं। सूरत अहज़ाब में अल्लाह ताला ने उन सादिकीन का ज़िक्र फरमाया है जिन्होंने अपने सच्चाई का अमलन सबूत दिया, और जो अमलन झूठे ठहरे उनको अल्लाह पाक ने मुनाफिक का ख़ताब दिया है। सूरह अहज़ाब में अल्लाह पाक फरमाता है, ताकि अल्लाह सच्चों को उनकी सच्चाई के सबब से अजर दे और मुनाफिकों को सज़ा दे अगर चाहे, या उन पर रुजू हो, यानी मुसलमान हो जाएं तो माफ़ हो जाए। झूठे इंसान की तरह इसका हर अज़ू भी झूठ का मुर्तकिब होता है। अल्लाह पाक सूरत अलक में फरमाता है, झूठी खताकार पेशानी, हर चंद के इसको इस्तारा कहिए, फिर भी पेशानी का झूठ कलिंग का टीका है जो मिट नहीं सकता। इस तरह रियाकारी करना और जो नहीं है अपने को वो दिखाने की कोशिश करना भी अमलन झूठ है। सूरत आले इमरान में अल्लाह पाक फरमाता है, उन्होंने कहा, अगर हम जाने कि लड़ाई होगी तो हम भी तुम्हारे साथ चलें। वो इस वक्त ईमान से ज़्यादा कुफ्र से करीब हैं। वो मुंह से वो कहते हैं जो दिल में नहीं है। सूरत निसा में अल्लाह पाक फरमाता है, ये वो हैं जिनके दिल का हाल अल्लाह जानता है। ऐसे ही वो शख्स जो अपने को वो दिखाना चाहे जो वो नहीं है, या अपने में वो बावर कराना चाहे जो उसमें नहीं है, झूठ है। एक दफ़ा एक औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी एक पड़ोसन है, क्या अगर मैं ये ज़ाहिर कर दूं कि मुझे शोहर ने ये दिया और वाक़या में ये ना हो, सिर्फ़ इसको जलाना मद्देनज़र हो, तो क्या ये भी गुनाह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जितना नहीं दिया गया इतने का दिखावा करने वाला झूठ है। इसी तरह जो दीन का आलिम नहीं वो अपने को आलिम
बावर कराने की कोशिश करे। जो दौलतमंद नहीं वो दौलतमंदी का दिखावा करे, यानी किसी के पास जो चीज़ नहीं इसको अपने पास दिखाने की कोशिश करना दर हकीकत दूसरों को फ़रेब देने की कोशिश है। झूठ के बहुत से मर्तबे हैं। अच्छे अच्छे लोगों का ये हाल है कि वो बेज़रर झूठ को बुरा नहीं जानते। जैसे अक्सर लोगों को देखा जाता है, बच्चों को बहलाने के लिए उनसे झूठे वादे कर लेते हैं और समझते हैं कि वो इन बातों को या इन वादों को थोड़ी देर में भूल जाएंगे, और अक्सर ऐसा ही होता है। मगर झूठ बहरहाल झूठ है। इस्लाम ने इस झूठ की भी इजाज़त नहीं दी है। एक कमसिन सहाबी अब्दुल्ला बिन आमिर कहते हैं, एक दफ़ा मेरी माँ ने मुझे बुलाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ़ रखते थे। तो माँ ने मुझे बुलाने के लिए कहा कि यहाँ आओ, तुझे कुछ दूंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहती हो मगर तुम इसको कुछ देना नहीं चाहती हो। माँ ने कहा, इसको खजूर दे दूंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इसको इस वक्त कुछ ना देती तो ये झूठ भी तुम्हारा लिखा जाता। इस तालीम का मंशा तो ये है कि मुसलमान को किसी भी हाल में अपनी ज़बान को झूठ से आलूदा नहीं करना चाहिए, लेकिन इस मौका पर सच बोलने की ताकीद फरमाना इसलिए भी है कि माँ बाप के गलत रवैया से बच्चा की तालीम और तरबियत पर बुरा असर पड़ेगा। वो बचपन में जो कुछ देखे और सुनेगा इसी सांचे में ढलेगा। इसलिए लोगों को चाहिए कि बच्चों से भी झूठ ना बोलें। बाज़ लोगों की आदत ये होती है कि जब इनको खाने के लिए या किसी और चीज़ के लिए कहा जाता है तो वो बनावट से ये कह देते हैं कि मुझे ख्वाहिश नहीं, हालांकि इनके दिल में इसकी ख्वाहिश मौजूद होती है। तो ये भी झूठ है। एक दफ़ा हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि हम में से कोई किसी चीज़ की ख्वाहिश रखे फिर कह दे कि मुझे इसकी ख्वाहिश नहीं, तो क्या ये भी झूठ होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर छोटे से छोटा झूठ भी झूठ लिखा जाएगा। इसी तरह वो बातें भी झूठ हैं जो खुशगप्पी के मौके पर महज लुत्फ़ सोहबत के लिए बोले जाते हैं। इससे भी अगरचा किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि बास मौक़ों पर ये एक दिलचस्पी की चीज़ बन जाता है। ताहम इस्लाम ने इसकी भी इजाज़त नहीं दी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है इस पर अफसोस, क्योंकि इससे आदमी का वज़न हल्का होता है और इसकी बात बेएतबार होती है और हर शख्स ये समझने लगता है कि इसका सच भी झूठ के बराबर है। इस सूरत के अलावा झूठ की जितनी ख़तरनाक सूरतें हैं उनके ख़तरात के लिहाज से इस्लाम ने इनके मदारिज मुकर्रर किए हैं। एक सूरत झूठ की ये है, एक शख्स को सच्चा और काबिल एतबार समझता है, इसलिए इसकी हर बात का यकीन कर लेता है, लेकिन वो शख्स इसके इल्म और यकीन से नाजायज़ फ़ायदा उठाता है और झूठ बोलकर इसको सख्त फ़रेब और नुकसान पहुंचाता है। इस्लाम ने इसको सख्त ख़यानत करार दिया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक बहुत बड़ी ख़यानत है कि तुम अपने भाई से एक झूठी बात कहो हालांकि वो तुमको सच्चा समझता हो। इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक झूठ वो है जिससे लोगों के हकूक़ और इज़्ज़त व आबरू को नुकसान पहुँचे और उससे माशरती निज़ाम में खलल वाक़ हो। ये झूठ आम झूठ से इस कदर मुख्तलिफ है कि इस्लाम ने इसका नाम तक बदल दिया है। इसको ज़ोर और इफ़्क जैसे अल्फाज से ताबीर किया है। झूठ की ये सूरत इस कदर ख़तरनाक है कि अल्लाह ताला ने शिर्क के साथ साथ
اس کا ذکر کیا ہے اور مسلمانوں کو حکم دیا ہے۔ سورۃ حج میں اللہ پاک فرماتا ہے بتوں کی گندگی اور جھوٹی بات کے کہنے سے بچتے رہو۔ اس آیت میں قول زور، اگرچہ زور ایک عام لفظ ہے جس میں کذب اور بہتان یعنی جھوٹ اور بہتان وغیرہ کا عنصر شامل ہے، لیکن احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے خاص طور پر جھوٹی شہادت مراد ہے۔ جامع ترمذی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا میں تم لوگوں کو سب سے بڑا گناہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے۔ آپ نے فرمایا شرک اور ماں باپ کی نافرمانی۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ دفتن اٹھ بیٹھے اور کہا کہ جھوٹی شہادت یا جھوٹی بات اور برابر یہی کہتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو جاتے۔ اس آیت پاک اور اس کی تشریح حدیث میں غور کرنے سے یہ نقطہ ملتا ہے کہ شرک کے بعد ہی جو برائی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذکر کے قابل تھی وہ یہی جھوٹ ہے۔ اسے اندازہ ہوگا کہ اس کی گندگی کا کیا عالم ہوگا۔ قول زور سے مراد ہے جھوٹی شہادت دینا، جبکہ افک سے مراد ہے کسی پر جھوٹی بہتان لگانا۔ اللہ پاک نے افک کو قول زور سے بھی سخت لفظ یا سخت جھوٹ قرار دیا ہے، اور مشرک لوگ اللہ پر جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ ان کو قرآن پاک نے افک کہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کی سرحد کبھی کبھی شرک سے مل جاتی ہے۔ منافقین نے حضرت عائشہ پر جو الزام لگایا تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ افک سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ افک لفظ بڑے بدطینت لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سورۃ شورى میں اللہ پاک فرماتا ہے اور شیطان تو اترا کرتے ہیں ہر جھوٹ باندھنے والے بد کردار پر۔ جھوٹ کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان جھوٹ سچ جو کچھ سنے اس کو بلا تحقیق دوسروں سے کہتا پھرے۔ ایسا شخص بے اعتبار سمجھا جاتا ہے اور معاشرے میں اس کی بات کی قدر نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کو یہ جھوٹ بس ہے کہ جو سنے وہ کہتا پھرے۔ ایسے لوگوں کو جو ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کے بڑے سننے والوں کا خطاب دیا ہے۔ یہودیوں کے ایک گروہ کی نسبت فرمایا۔ سورۃ مائدہ اللہ پاک فرماتا ہے جھوٹ کے بڑے سننے والے ہیں۔